Success Mantra. We shape future. Hello everyone, good afternoon. So today's session is very important for us because we are conducting mocks regularly. So we have conducted till date, we have conducted 8 mocks in total. These are the weekly mocks. And the most important aspect of any mock is to analyze that particular mock and form your strategy and make your strategy for the next mock. तो बेसिकली हम लोग मॉक अटेम्प्ट क्यों करते हैं? मॉक हम लोग इसलिए संडे को रखते हैं. संडे को मॉक रखने के पीछे का जो सोल ऑब्जेक्टिव है, दैट यू शुड हैव द ब्लूप्रिंट एट द एंड ऑफ द डे. when you've done your mock, when you've completed your mock, at the end of the day you should have this strategy that what's going to be a blueprint for the next 6 days. यानी मंडे टू सैटरडे के लिए जो आपका नेक्स्ट मॉक है उसके लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करके कौन देगा? जो आपका मॉक एनालिसिस है. दिस विल प्रोवाइड यू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड द ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट 6 days विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 6 days. मंडे टू सैटरडे आप एनालाइज करेंगे, संडे को अपना मॉक देंगे, उसे एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के बाद एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, फिर उस स्ट्रैटेजी को आप अगले 6 दिन तक इंप्लीमेंट करेंगे. देन अगेन यू विल टेस्ट योर स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट मॉक. दैट्स व्हाई दिस मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So we will start today's session on mock analysis and strategy with the first slide. Now this is basically these are the few important headlines or the few important points that we are going to cover in this particular video analysis, in this particular video. And what are these points? Why analysis is needed? First and the foremost important thing is when we attempt anything, why we should do this particular thing. That's why the first important thing is why analysis is needed. Purpose of this analysis in your test preparation. Now what is the mock analysis cycle? Key benefits of attempting mock, key benefits of having a proper mock analysis. Now interpreting your mock result as per the requirement of the examination and as per your preparation, you will interpret the mock results according to your preparation. That what are the weak points, what are the strong points that I have to work more on. So you have to observe all these things in the basically you have to interpret your results of mock. Now from analysis to action. Now this is the most important point, from analysis to action. And why this particular point becomes very important? Because if you analyze your mock and you haven't prepared any blueprint for the next 6 days, then there is no benefit of analyzing the mocks. The most important thing is attempting mock. अब मॉक अटेम्प्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? मॉक को एनालाइज करना. अब मॉक को एनालाइज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? कि एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करना कि इस एनालिसिस के बाद जो आपको ड्रॉबैक्स या फ्लॉज नजर आए अपनी प्रिपरेशन में, अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट 6 डेज जो होंगे वो हार्डवर्क करेंगे. Now the next important aspect that we are going to deal in this particular video, common pitfalls to avoid. What are the common mistakes that you have to avoid while conducting or while having your mock analysis? And the last and the most important point and another important point, best practices for effective mock analysis. Now what are the different practices that you have to adopt for an effective mock analysis? We are going to discuss all these things in this particular video. So let's start with the first slide. Let's start with the first heading, that was purpose in test preparation. Why test preparation is important? Now we all know that practice makes a man perfect, so do introspection. We all know that practice makes a man perfect, and apart from the practice, which other things makes a man perfect, which other thing makes a man perfect? That is introspection. Introspection is very important. So your mock analysis is a kind of introspection of the mock that you have given. अगर आप आज ने संडे के दिन आपने अपना mock 8 दिया, तो आज आप शाम में बैठ के अपने mock को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और अपने फ्यूचर टारगेट्स को अकॉर्डिंगली सेट करेंगे. जिस जगह पे आपके लूप होल्स हैं, जिस जगह पे आपके पॉट होल्स हैं, सिर्फ आपको उन पॉट होल्स को फिल करना है. पूरा का पूरा रोड आपको वापस से नहीं बनाना है. अगर आप पूरा रोड वापस से बनाने लग जाएंगे तो फिर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, फिर एनालिसिस करने का फायदा क्या हुआ? तो ऑलवेज ट्राई टू फिल योर पॉट होल्स. नाउ एवरी मॉक एनालिसिस गेट्स यू इंचेस क्लोजर टू योर गोल. So if you are analyzing your mock properly, then that is one thing is for sure, that you are getting closer to your success. If you are not analyzing your mocks, then there is no point of attempting mock. आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मॉक को, बट अगर आप उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 100 मॉक्स आपको लगेगा कि आपने जहां से शुरुआत की थी आप अभी वहीं पे खड़े हैं. आप कहीं पे जो आपका एक्चुअल मूवमेंट हुआ है, जो आपका एक्चुअल ग्रोथ हुआ है, या जो आपका एक्चुअल प्रोग्रेस है, वो जीरो है. तो मॉक एनालिसिस सिर्फ आपको करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि मॉक एनालिसिस प्रोवाइड्स यू द एग्जैक्ट गाइडेंस एंड डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट मॉक. विदाउट एनालिसिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक इज इनकम्प्लीट. So the objective of mock is not to attempt the mock.
The main objective of any mock is to analyze that particular mock and identify your weak areas. जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं या जो कॉलेजेस होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहां पे मॉक फायर ड्रिल होती हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक फायर ड्रिल? कि अगर ऐसा सिचुएशन कभी इमरजेंसी में आता है तो हम लोग उसके लिए रेडी रहें. टू चेक योर प्रिपेयर्डनेस. आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं अपनी रेडीनेस को चेक करने के लिए. तो एंड ऑफ द डे अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना रेडी हैं या कितना रेडी नहीं है. अब जो आपका बेसिकली मॉक होता है दैट प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन टू द प्रिपरेशन. एवरी मॉक एनालिसिस विल प्रोवाइड यू सर्टेन गाइडेंस और सर्टेन डायरेक्शन टू द प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर aspect. Now look at this particular slide, look at this particular table, look at this particular table. Now the main objective is to take the mock exam, review the result, take the mock exam, review the result, identify the gaps, as adjust your study plan and repeat the process. Now take the mock exam. This is the first step. Taking any mock is your first step. This is the first step. And what comes next after taking the mock? Reviewing the result. And after reviewing your result, you have to identify the gaps. You have to identify the gaps, and the main objective of identifying the gaps so that you can fill these gaps easily. So not only identifying those gaps but filling those gaps is very important. That's why the mock analysis becomes very important. And once you have identified those gaps, suppose today is 7th of July 2024, you gave a mock on 7th July 2024, आपको रिजल्ट मिला, आप सेम डे एनालाइज करेंगे. फिर आप क्या करेंगे, आप अपना 8 to 13th ऑफ जुलाई आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है या आपको 7th ऑफ जुलाई 2024 को मॉक अटेम्प्ट करने के बाद पता चल जाएगा. अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप अपने स्टडी प्लान को एडजस्ट करेंगे. अब एडजस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब आपने मान लीजिए आपने 7th मॉक किया. अब इस 7th मॉक में मान लीजिए आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश का, कि आपके सेंटेंस रीअरेंज करने के जो क्वेश्चन थे या सेंटेंस रीऑर्डरिंग के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे गलत हुए हैं. तो बेसिकली आपने हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक में अपना टारगेट सेट किया हो कि आप इंग्लिश में कोई और पोर्शन कवर करेंगे, बट आपने जब अपना मॉक एनालाइज किया तब आपको पता चला कि सेंटेंस रीअरेंजिंग का जो क्वेश्चन था या जो क्वेश्चन थे वो आपके गलत हुए. तो आप अपने प्लान को एडजस्ट करेंगे और उसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वो क्या है, सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग. सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ करंट अफेयर्स. आपने मान लीजिए करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने जुलाई का कोई एक पैसेज था जिसे आपने अटेम्प्ट किया, एंड यू फाइंड आउट दैट आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, ओनली 2 क्वेश्चंस वर करेक्ट. तो यू विल एडजस्ट योर स्टडी प्लान और आप फिर उस स्टडी प्लान में अपने जुलाई के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे, बिकॉज आपने जो जुलाई का मॉक अटेम्प्ट किया उसमें आपके 3 क्वेश्चंस गलत थे. एंड द लास्ट स्टेप इज आफ्टर एडजस्टिंग योर स्टडी प्लान, आप अपने प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे. फिर आप 1 वीक तक का वेट करेंगे, उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, फिर आप संडे को मॉक देंगे, फिर आप चीज़ों को देखेंगे, फिर आप रिजल्ट रिव्यू करेंगे, फिर आप गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे. सो बेसिकली यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, एंड यू हैव टू वेरी मेटिकुलस while analyzing your mock. You have to very meticulous about each and everything. Nothing is small. You have like your mock is of 120 questions. अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, these are not 6 क्वेश्चन, या आपके एग्जाम का 5% कवरेज है. तो बेसिकली आपका अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एग्जाम में अल्टीमेट सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको हर एक क्वेश्चन पे इंडिविजुअली ध्यान देना होगा, एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा. अब आप एक छोटा सा आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस बेसिकली अटेम्प्ट कैसे करने हैं और आपको मॉक एनालिसिस करना कैसे. सो आप लोगों के सामने आप लोगों को एक छोटा सा टेबल दिख रहा है. इस टेबल में मैंने इस टेबल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहले तो सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया मैंने, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल, करंट अफेयर्स, जीके, मैथ्स. इन ए स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग से 28, लीगल से 29, सीए जीके से 28 to 30, मैथ्स से 10, टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए आपके. अब मान लीजिए आपने इंग्लिश के सेक्शन में आउट ऑफ 25 यू अटेम्प्टेड ओनली 20 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके सिर्फ 14 क्वेश्चन सही हो पाए, इनकरेक्ट कितने हुए 6. सो आपने नेट मार्क्स कितने अचीव किए 12.50. सेम इन रीजनिंग में आपने 22 अटेम्प्ट किए, 22 में से 17 सही थे. सो आपका एक्चुअल स्कोर कितना हुआ और इनकरेक्ट कितने थे आपके 5. तो 1.25 मार्क्स आप 17 से लेस कर देंगे तो 15.75.
आपने रीजनिंग में स्कोर किया। लीगल में सपोज देयर आर 29 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड ओनली 21 questions, and out of 21 questions you got 18 questions right, 3 questions were wrong, so your net score is 17.75. Now in CAGK you have 28 questions, you attempted 26 and you got 19 questions right, 7 questions were wrong, so your net score will be 17.25. Now in maths you have 10 questions, you attempted 6, you got 3 questions right, 3 questions wrong, your net score is 2.25. Now this is your actual analysis, how the analysis should be done. Now you have attempted total questions 617, 613 to 15, so you attempted total 95 questions. Out of 95 questions you got 9, 3, 12, 8, 20 plus 7, 27 plus 4, 31, 1, 3, you got 71 questions correct, and 4, 7, 4, 11, 11, 8, 19, 19 plus 9, 28, 28 plus 3, 31 plus 1, 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 71 questions correct. Wrong कितने हुए? 6, 5, 11, 11 and 7, 18, 18, 3, 21, 21 plus 3, 24. You got 24 questions wrong. So basically you scored total 65 marks in this particular mock. So basically this is a rough idea that how you have to analyze your mock. So if you have analyzed this mock like in this particular way, so you'll get to know that you have attempted total 95 questions. Out of 95 questions 71 questions were correct, 24 questions were wrong, and your actual score was 65. Now from here you can analyze one thing. अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब आपको पता चला कि आपके इंग्लिश में 6 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर आप उन टॉपिक का एक लिस्ट रेडी करेंगे, फिर आप उस टॉपिक का क्या करेंगे, लिस्ट रेडी करेंगे। आप अभी क्या करना है, अभी आप अपने रिजल्ट को रिव्यू कर रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि मेरे ये 6 टॉपिक्स हैं जिनसे मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, फिर आपको क्या पता चल गया, आपको अपने गैप्स पता चल गए। ये मान लीजिए आपका लीगल में फैमिली लॉ का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आपका कॉन्स्टी का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंग्लिश में आपका सेंटेंस रीअरेंजिंग या सेंटेंस रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन गलत हो गया, और करंट अफेयर्स में आपके जुलाई और जून के जो करंट अफेयर्स थे वो गलत हुए, और मैथ्स में आपका परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस गलत हो गए। सो आपको बेसिकली ये 7 to 8 टॉपिक्स पता चल गए जो आपको पता चला कि इस मॉक में इन टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं। फिर आप क्या करेंगे, इन 8 टॉपिक्स की आप एक लिस्ट रेडी करेंगे और आप कहीं पे इसे पेस्ट कर देंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो अगले 6 दिन बचे हैं, मंडे टू सैटरडे, बेसिकली आपको बस इतना करना है कि ये जो 6 टॉपिक्स हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप अपना अगला मॉक दें तो इन 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कम से कम गलत हों। स्मार्ट लोग वही हैं जो एक गलती बार बार नहीं दोहराते हैं। एक गलती जब आपको पता चल जाए कि आपने कोई गैप आइडेंटिफाई करा है, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप बाकी सारी चीजों को बाद में देखेंगे, पहले जो आपने ऑलरेडी गैप्स को आइडेंटिफाई किया है, आप उन गैप्स को फिल करेंगे बहुत स्मार्टली, ताकि वो गैप दोबारा से क्रिएट ना हो। अब मान लीजिए आपने मॉक 8 में एनालाइज किया कि आपका परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जब आपको ये चीज 7th मॉक में या 8th मॉक में अपने पता चल गई है, तो यू शुड टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप कि आपका जो 9th मॉक हो या जो नेक्स्ट मॉक हो, उसमें ये मिस्टेक, आपकी सेम मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मॉक एनालिसिस का। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव मॉक एनालिसिस। मॉक ऐसे ही एनालाइज करना चाहिए। आप सारे सब्जेक्ट का पहले एक ये लिस्ट, सेपरेट लिस्ट क्रिएट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से, सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए, आपने नेट कितना स्कोर किया। फिर नेट स्कोर जब आपको पता चल गया, फिर आप इनकरेक्ट सेक्शन से आप अपने टॉपिक्स पिक करेंगे, टॉपिक्स का एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 डेज इन्हीं टॉपिक्स की आप preparation करेंगे। So this is how a comprehensive mock analysis should be done. Now moving on to the next important aspect. Now the key benefits. Key benefits key benefits of attempting mock. The first benefit is that you identify your weaknesses. So identifying weakness is very important. आप किसी वॉर में जाते हैं, तो वॉर में अगर आपको पता चल जाए कि अगर आपकी कोई कमजोरी है, तो उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, फिर आप उसमें अपनी कमजोरी को दूर करेंगे, फिर आप एक्चुअल फील्ड में वॉर करने पहुंचेंगे। तो बेसिकली पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको अपने वीकनेसेस पता चलती हैं, यही है आपके गैप्स। इन्हीं गैप्स को आपको फिल करना है।
फिर क्या होता है, दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होता है। आपके पास हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन का स्टेट क्या है, आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। जब आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत करेंगे, आप कॉन्टिन्यूसली मॉक को एनालाइज करेंगे, तो आपके पास ये रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहेगा। फिर आप इजिली अपना कर्व देख सकते हैं कि हाँ आपका जो ग्रोथ हो रहा है ये कहाँ है। जैसे मॉक 1 में मान लीजिए किसी ने 64 स्कोर किया, फिर यहाँ पे मॉक 2 में किसी ने मान लीजिए 73 स्कोर किया, फिर मॉक 3 में किसी का स्कोर मान लीजिए 60 हो गया, फिर मॉक 4 में स्कोर फिर से 65 हो गया। सो बेसिकली इसलिए आप अपने मॉक का एनालिसिस करते हैं ताकि आपके पास अपने परफॉर्मेंस का एक हिसाब रहे कि आपने अभी तक के जो मॉक्स हैं उनमें कैसे परफॉर्म किया है। क्या आप कोई मिस्टेक वापस से तो दोबारा बार बार नहीं कमिट कर रहे हैं कि आपने मॉक 1 में भी परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस गलत किए थे, आपने मॉक 8 में भी परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस गलत किए हैं। दैट्स व्हाई द एनालाइजिंग मॉक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, आपके पास अपनी परफॉर्मेंस का एक हिसाब रहता है। और देन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फैमिलराइजेशन विद द सिचुएशन ऑफ एग्जामिनेशन। सो बेसिकली आप एग्जाम की जो सिचुएशन होती है उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं। क्यों फेमिलियर हो जाते हैं? एक्चुअल जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? जो एक्चुअल क्लैट का एग्जाम होगा 120 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास कितना टाइम रहेगा? 120 मिनट्स का टाइम रहेगा। और जो आपका मॉक हो रहा है उसमें कितने क्वेश्चंस रह रहे हैं? 120 क्वेश्चंस रह रहे हैं। कितना टाइम रह रहा है आपके पास? 120 मिनट्स का टाइम रह रहा है। तो बेसिकली आपको एग्जाम की सिचुएशन से, आप जो एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको आप उन कंडीशन से थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट। नाउ मैंने ऑल्सो वर्ड ऐड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट हम एक साथ एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट 4th नंबर पे। स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर मॉक अटेम्प्ट करते हैं, उसमें आपका कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था जो आप फॉलो कर रहे थे, बट आपको 2-3 मॉक अटेम्प्ट करने के बाद लगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे रही है। फिर आप क्या करेंगे? जब अगर आपको पता चल गया कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे रही है, फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। एडजस्ट योर स्टडी प्लान, दिस वॉज योर एडजस्ट। आप अपने स्टडी प्लान को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एंड ऑफ द डे बढ़ना ही बढ़ना है। कैसे? आपने मॉक अटेम्प्ट किया, सबसे पहला रीजन आपका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने मॉक अटेम्प्ट किया। सबसे पहला स्टेप यही होता है, मॉक एनालाइज करने से पहले आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं। आपने मॉक अटेम्प्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपने मॉक एनालाइज किया, आपको अपने वीक एरियाज जब पता चले तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वीक एरियाज पता चलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ना चाहिए? वीक एरियाज पता चलने के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि अब आपको मेहनत कहाँ करनी है, और आप मेहनत करके उन वीक एरियाज को भी आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। आप एग्जाम की सिचुएशन में हमेशा मॉक्स को अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मॉक्स को इंटरप्रेट कैसे करना रहता है? सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मॉक्स के जो स्कोर होते हैं उसको आपको ब्रेक डाउन करना है। आपको क्या करना है? मॉक्स के स्कोर को ब्रेक डाउन करना है। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टेबल में देखा कि सारे मॉक्स के स्कोर को ब्रेक डाउन कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप ये कर सकते हैं मॉक एनालिसिस के बाद कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। सपोज देयर आर 120 क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड अटेम्प्ट जो है, नेशनल एवरेज है वो 103 का है, बट आप अपने किसी भी मॉक में 70 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और टॉप 5 एनएलयूज का जो कट ऑफ है वो 87 जा रहा है। तो बेसिकली आप अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप उतने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं जितने क्वेश्चन पे आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। सो बेसिकली आपको अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी यहीं से पता चलेगा कि आपको किन एरियाज में अपना टाइम कम करना है, किन एरियाज में आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में सिर्फ 30 सेकंड डिमांड कर रहा है बट आप उस पर 2 मिनट दे रहे हैं। तो आप बेसिकली एक एक चीज एग्जाम में याद रखिएगा कि एग्जाम में आपका जो 120 मिनट्स होता है वो हमेशा आपका स्टैंडर्ड फिक्स टाइम उतना हमेशा रहेगा। 120 मिनट्स वो फिक्स रहेंगे। अगर आप एग्जाम में अपने आप टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो टाइम बढ़ाने का सिर्फ इकलौता एक ही तरीका होता है, जो एक इकलौता पॉसिबल वे है वो क्या है कि आप टाइम को सेव कर लीजिए। अगर आप टाइम सेव कर लेंगे तब भी आपको टाइम का मतलब जो आपके पास टाइम की जो शॉर्टेज है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने टाइम सेव किया तो एडिशनल मिनट्स आपके ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन टाइप एनालिसिस, तो बेसिकली आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी एक एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ moving on to the next aspect of this particular video.
From analysis to action. Now, what's the next step? Now, what is the next step from analysis to action? Now, we creating targeted study plan. Now, this is also very important. Creating targeted study plan. Targeted study plan means do not repeat mistakes. If you are repeating your mistakes, if you are repeating mistakes, then that means you haven't analyzed your mock properly. Now, setting realistic goals. This is the most important aspect. Now, many of the aspirants do is that they set unrealistic target. They will make a timetable which will be like कि सुबह 7 a.m. wake up at 7 a.m. 8 a.m. breakfast, 10 a.m. to 12 a.m. First study slot, 12 to 1 lunch, 1 to 3 second study slot, 3 to 4 rest, 4 to 6 next study slot, 6 to 8 रेस्ट या लेजर टाइम, 8 to 10 फिर से वापस से फिफ्थ स्टडी स्लॉट, 10 to 11 डिनर एंड इधर उधर की चीजें, फिर 11 से एक आपने एक दिन भर जो आपने पढ़ा ये रिवाइज करने का आपने प्लान रखा. तो बेसिकली जब आप अपने लिए इतना बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं तो कई बार आपको खुद से अंदर से फील आ जाता है कि ये इतना बड़ा टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं, मैं इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकता हूं. सो बेसिकली उसका एक नुकसान क्या होता है, उसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि आप मॉक को या सॉरी आप जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी स्टडीज हैं, आप उनको वैसे ही छोड़ देते हैं, आप मॉक को अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं, आप मॉक को एनालाइज करना छोड़ देते हैं. इसीलिए हमेशा आपने जो टारगेट्स हैं उनको रियलिस्टिक सेट करिए. रियलिस्टिक टारगेट सेट करने का बेनिफिट क्या होगा? रियलिस्टिक टारगेट सेट करने का बेनिफिट ये होगा जब आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, अचीव करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा सातवें आसमान पे रहेगा. तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सेट द रियलिस्टिक टारगेट्स. सुबह 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक के टाइम में, बीच में जो ये 19 घंटे का टाइम है, सॉरी, सुबह 7 से लेकर के जो शाम 12 बजे जो 17 घंटे का टाइम है, इसमें आपने टाइम टेबल में लिख रखा है एज पर योर टाइम टेबल कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे, बट आप दिन में पढ़ 12 मिनट भी नहीं रहे. तो बेसिकली अपने टारगेट्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक सेट करिए, अपने टारगेट्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाइए. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मेजरिंग प्रोग्रेस. अपनी प्रोग्रेस को हमेशा कहीं पे पेन डाउन करते हुए, नोट डाउन करते हुए चलिए कि आप कितना प्रोग्रेस आपने किया है. जब आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहेंगे कि हाँ ये मेरा चार्ट है, ये मेरा लर्निंग कर्व है. अब मान लीजिए अगर आप अपने लर्निंग कर्व को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे तो ये लर्निंग कर्व हमेशा आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा. और एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाम में आप हर चीज की तैयारी कर सकते हैं, बट आपको कभी कोई कॉन्फिडेंस देकर के नहीं जाएगा. कॉन्फिडेंस हमेशा आपको अपने अंदर से लेकर के आना होगा दैट आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट. दैट्स व्हाई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स और द पिटफॉल्स दैट यू हैव टू अवॉइड व्हाइल एनालाइजिंग योर मॉक और व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक? दैट फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डोंट हैव, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट मिस्टेक जो लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं वो इंडिया में कमिट करते हैं, वो है आप अपने मॉक के रिजल्ट्स को इग्नोर करते हैं. आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप मॉक दे करके जाते हैं. आपने क्या किया कि अपना मॉक उठाया, मॉक मिला आपको, आपने मॉक सॉल्व करके कोचिंग में दे दिया, इंस्टीट्यूट में दे दिया, फिर आप वापस गए, फिर आपने उस मॉक को निकाला और आपका जो बहुत ऊंचा एक बुक लिस्ट होगा या जो बुक्स का एक बहुत ऊंचा ढेर होगा, आपने उसी में कहीं पे नीचे जाकर के वो मॉक रख दिया. तो अगर आपने वो मॉक वहां पे जाकर के रख दिया, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आप वो मॉक वहां से दोबारा कभी नहीं निकालने वाले हैं. तो बेसिकली आपको कभी अपने मॉक के रिजल्ट्स को स्कोर्स को इग्नोर नहीं करना है. वो आपको एक रियलिटी चेक देते हैं. रियलिटी चेक मतलब कि वो आपको बेसिकली ये बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी है, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं. स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करना है, वीक एरियाज को एवरेज करना है, एवरेज से गुड करना है, गुड से बेस्ट करना है. यही एक कॉमन प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आप जब किसी भी मॉक को अटेम्प्ट करने के स्टार्ट करिए तो आपका हमेशा टारगेट ये रहना चाहिए गिवन द टाइम कि आप एटलीस्ट, अगर आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चंस हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप इन 120 क्वेश्चंस को रीड कर लें. आपने एक बार इन 120 क्वेश्चंस को रीड कर लिया तो हमेशा प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट क्वेश्चंस करने की ज़्यादा रहती है. अब एक चीज़, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, एक छोटा सा बस एक एग्जाम्पल है. दिस इज द लास्ट, दिस इज द बेसिकली द लास्ट आस्पेक्ट. Suppose if a person is attempting 80 questions
here 90 questions, and here 100 questions, and here 120 questions. These are the 4 examples. अब मान लीजिए सपोज दिस पर्सन हैज अ एक्यूरेसी रेट ऑफ 90%, तो इसने 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, करेक्ट किए, और 8 क्वेश्चंस इसने रॉन्ग किए, तो इसका एक्चुअल स्कोर कितना है? 70. 90 वाले जिस पर इंसान ने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसका भी, एक मिनट, इसने भी 90% एक्यूरेसी के साथ 81 क्वेश्चंस करेक्ट किए, 9 क्वेश्चंस रॉन्ग किए, सो इसका स्कोर कितना है? 78.75. अब जो 100 क्वेश्चंस जिसने अटेम्प्ट किए इसकी एक्यूरेसी कितनी थी? 90%. 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इनका स्कोर आया 88.5. अब जिसने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसकी एक्यूरेसी सिर्फ थी 80, तो 80% एक्यूरेसी के साथ इसने 96 क्वेश्चंस करेक्ट किए, और इसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए? इसने 24 क्वेश्चंस रॉन्ग किए. सो 24 क्वेश्चंस पे इसके 6 मार्क्स डिडक्ट हो गए. इसने कितना एक्चुअल स्कोर किया? 90 स्कोर किया. तो बेसिकली कई बार जब आप कम क्वेश्चंस बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं तब भी आप उतना स्कोर नहीं ला पाते हैं, बट जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और आपका एक्यूरेसी बस स्टैंडर्ड एक्यूरेसी रहता है तब भी आप स्कोर ठीक ठाक कर ले जाते हैं. एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि जिसने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 90% एक्यूरेसी के साथ, उसका स्कोर कितना आया था? 78.75. एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा है. बट एक सामने आप एक ये भी देखिए कि एक इंसान ने 120 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसका एक्यूरेसी रेट सिर्फ 80% था, डिस्पाइट उसने 90 स्कोर कर लिया. तो बेसिकली आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इसीलिए ज़रूरी होता है. नाउ व्हाट आर द कॉमन पिटफॉल्स दैट यू हैव टू अवॉइड? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. नाउ मूविंग ऑन. Now, what are the best practices for effective mock analysis? What are the best ways to have a mock analysis? So regular mock taking schedule, you should have a regular mock taking schedule that I will give one mock on every Sunday. This is a kind of schedule that you have to follow, that on every Sunday I will take one mock, and after giving that particular mock I will deeply analyze that particular mock, and I will see what are the mistakes, what are the common loopholes, and I will try to fill those gaps and loopholes in the next mock, and I will prepare a strategy. Now moving on. Yeah, so with this we have completed this particular video, and this particular analysis is very important, that how to conduct your mock analysis. This particular thing is very important because if you don't know how to conduct a proper mock analysis, then there is no point of giving mock. I'll be very honest that if you're not analyzing your mock regularly and properly, then there is no need of giving mocks at all. There is no point of giving mock at all. बिकॉज वंस यू एनालाइज योर मॉक, आप अपने जो आपका जो रेस है उसमें 50% कैंडिडेट से आप ऑलरेडी आ गए. जब आप एक बार मॉक एनालाइज करेंगे आपको अपने वीक एरियाज मिलेंगे, आप अकॉर्डिंगली अपना स्टडी प्लान सेट करिए. आपने संडे को मॉक दिया, संडे को आपने एनालाइज किया, संडे को आपको अपनी फॉल्ट्स पता चल गई, फिर आप क्या करेंगे? मंडे टू सैटरडे एक प्लान बनाएंगे, फिर उस अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी. इन सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली अटेंशन दीजिएगा, और जो भी डाउट रहेगा प्लीज़ उन सारी डाउट्स को अपने दूर करते रहिए. चीज़ें हैं तो पूछते रहिए, अगर दिमाग में कोई चीज़ आ रही है तो उनको पूछ लिया करिए. चुपचाप बैठे से कोई मतलब नहीं निकलता है. On this note, I will end today's this analysis section, and at the end of this particular video I would only say, practice makes a man perfect, so do introspection. Introspection is the most important thing in life and in mocks as well. So you have to do the introspection, you have to analyze your mocks. That's it. And all the very best for your next mocks as well, and all the best from the success mantra आप सबको. और मॉक्स को दीजिए, मॉक्स को एनालाइज करिए और लगातार बस लगे रहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू.